Hello friends, today we will start second part of second chapter of human geography, world population, distribution, density and growth. Now let's start the chapter. First of all, we will discuss about what are the content of this video which we discuss in that video. First of all, trends in population growth, doubling time of world population, spatial pattern of population change, impact of population change, demographic transition, population control measures. Let's explanation of this content. First of all, trends in population growth. Trends, that means pravarti, and that means the population increase in different time period, in different phases, different speed. So first of all, I would like to tell you approximately 12,000 to 8,000 years ago, the population roughly only 8 million. Only 8 million, that equal to approximately 80 lakhs is equal to 80 lakhs. 1 million is equal to 10 lakh. So that is 80 lakhs population. After that, in the first century AD, it was below 300 million, that is approximately 30 crore. 30 crore population, but in 1750, at the dawn of the Industrial Revolution, in the 18th century, that was the time period of Industrial Revolution in the world. Then the population was 550 million, that is approximately 55 crore all over the world population. But after that period, the population is a population explosion, जनसंख्या विस्फोट in the beginning of the 18th century. After the 18th century, due to the development of industrial revolution, technological advancement and scientific development, so that period after the 18th century recognized the period of population explosion. Now doubling time of world population, I already discussed in the previous chapters about the doubling time of world population. Now we will again discuss about that thing. Doubling time, that means the time duration, the time period in which the population of any country, any place and world will be double. That means suppose in any village approximately 100 people and the 100 double is 200, but how much time? सपोज ये 5 साल पहले 100 लोग थे, 5 साल बाद में ये 200 हो गए, दैट मीन 100 का डबल हो गया आफ्टर 5 ईयर, एंड दैट 5 ईयर रिकॉग्नाइज इज द डबलिंग टाइम. 5 साल क्या हो गया? डबलिंग टाइम. नाउ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, अगर हम वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पर 10 लाख साल लग गए 1 करोड़ पॉपुलेशन होने के अंदर. 1 करोड़ यानी पूरे वर्ल्ड की 1 करोड़ पॉपुलेशन होने के अंदर कितना टाइम लग गया? 10 लाख. बट आफ्टर दैट 12 ईयर यानी 12 साल में ही जो पॉपुलेशन है 5 बिलियन से 6 बिलियन हो गई. यानी यहाँ पर 5 to 6 बिलियन होने में ओनली 12 ईयर, जबकि 1 करोड़ होने में कितना टाइम लगा था? 10 लाख साल. दैट इज अ डबलिंग टाइम. But there is a different variation in different region. All over the world there is a doubling time in different countries, different variations. If we discuss about the countries, there is a two category: developed countries and developing countries. So if we compare developed country with the developing country, the doubling time of developed country is very less than the developing country. That means developing country growth rate is very high and the doubling time is very short. Another point, spatial pattern of population change. Now spatial is a specific area. स्पेशल यानी कोई एरिया से या क्षेत्रीय, इसको बोलते हैं स्पेशल मतलब क्षेत्रीय, या फिर कोई एरिया है, कोई स्पेसिफिक कंट्री है, प्लेस है.
So there is a special pattern of population change. That means there is a different population pattern in different places, different countries. So all over the world there is a different population growth rate. So there is a two type of country, the developing country and the developed countries. So the growth of population is low in developed countries. That means जो डेवलप कंट्रीज है उनकी ग्रोथ रेट है वो कम है, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज है उनकी ग्रोथ रेट है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा है. अब यहाँ पर अगर बात करते हैं कोरिलेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं कि जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होगा, अगर कम जनसंख्या है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा है. दैट इज ए कोरिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट and population growth. Another thing, the annual rate of population change. All over the world population change rate is 1.4. That is very less. अगर हम देखते हैं कि 1.4 ये तो बहुत कम है. But if we actually look toward large population, बहुत ज़्यादा यानी 140 करोड़ 135 करोड़ जनसंख्या में 1.5% की जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है. It is very high. So that is a very problem for any country. Now another point, a small annual rate is applied to very large population. यानी बहुत बड़ी जनसंख्या के अंदर 1% पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट ही बहुत ज़्यादा होती है. If the growth rate continue to decline, बट अगर हम देखते हैं कि लार्ज पॉपुलेशन में अगर ग्रोथ रेट धीरे धीरे कम भी हो रही है बट वो पॉपुलेशन ज़्यादा ही होगी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ गई है उतने टाइम ड्यूरेशन में जितनी ड्यूरेशन में वो कम हुई है. द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मे बी हैव इंक्रीज एज द डेथ रेट ऑफ ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ. तो यहाँ पर चाइल्ड बर्थ की भी अगर बात करते हैं वो भी एक इम्पैक्ट है पॉपुलेशन चेंज में. नाउ अनदर पॉइंट, हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी साइंस एंड पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे इफेक्ट करती है पॉपुलेशन बढ़ाने में, ग्रोथ करने में. नाउ लुक 2 पॉइंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ स्टीम इंजन टेक्नोलॉजी एंड अनदर इक्विपमेंट एंड मशीनरी, देयर इज ए लेस यूज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल एनर्जी. यानी जब मशीनों का उपयोग हुआ, स्टार्टिंग एनर्जी डेवलपमेंट हुई तो मशीनों के उपयोग से ह्यूमन लेबर वो कम हो गया. एंड देयर इज ए development of food production and another industrial production and availability of food, availability of different goods and item for human beings. तो यहाँ पे लोगों के लिए अच्छा खाना, अच्छी सुविधा, मशीनरी प्रोवाइड हो गई तो लोगों की जनसंख्या उसकी तरफ ज़्यादा इंक्रीज होने लगी या बढ़ने लगी. सेकेंड थिंग, द कंट्रोल ऑफ एपेडमिक, यानी महामारी है उसको कंट्रोल किया गया ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल साइंस एंड मशीनरी, वैक्सीनेशन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकल डेवलपमेंट. तो उससे क्या हुआ है कि जो डेथ रेट है वो कम हो गई है. दैट इज आल्सो रीजन बिहाइंड द पॉपुलेशन ग्रोथ, क्योंकि उससे डेथ रेट है वो रैपिडली कम हो गई है. अनदर पॉइंट, इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज. दैट मीन्स किसी भी कंट्री में जनसंख्या अगर ज़्यादा होती है, कम होती है, उसके वहाँ के डेवलपमेंट पे क्या इफेक्ट होता है, वहाँ के प्रोग्रेस पे क्या इफेक्ट होता है. लेट्स डिस्कस अबाउट दैट थिंग. ए स्मॉल इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज डिजायरेबल इन ए ग्रोइंग इकोनॉमी. तो यहाँ पर डेवलपिंग इकोनॉमी की बात करते हैं, ग्रोइंग इकोनॉमी की बात करते हैं. अगर इन सिंपल मेथड बात करें कि सब्जी के अंदर खाने में अगर थोड़ा सा नमक डालेंगे तो वो काफ़ी टेस्टी बना देता है खाने को, बट अगर हम उसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं तो आपके खाने का स्वाद है वो बीटर कर देता है, कड़वा कर देता है, साल्टी कर देता है, खराब कर देता है. सो सेम थिंग अबाउट द पॉपुलेशन विद द इकोनॉमिक ग्रोथ. थोड़े हद तक पॉपुलेशन है इंक्रीज होती है, ग्रोथ रेट होती है, इट इज़ ओके, बट बियॉन्ड द लिमिट, अगर एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाती है दैट बिकम प्रॉब्लम. Now another point, the population growth also problem for resource. अगर किसी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ के रिसोर्स पे प्रेशर होगा.
दैट मीन्स वहाँ के लैंड के रिसोर्स पे प्रॉब्लम होगा, फूड रिसोर्स पे, वाटर रिसोर्स पे, मिनरल रिसोर्स पे. दैट इज ए प्रॉब्लम फॉर द resources because that will be insufficient as per the demand for the population. Now another point, HIV and AIDS, different type of disease in Africa. That is a effect on Africa, that is a low that means जो डेथ रेट है वो ज़्यादा है वहाँ पर HIV की वजह से, एड्स की वजह से. इससे क्या हुआ है, एशिया है पुस्ट अप डेथ रेट एंड रिड्यूस्ड एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी. तो यहाँ पर डेथ रेट है वो क्या हो गई है, वहाँ पर कम हो गई है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम हो गई है. अगर आपके दिमाग में आओगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी दैट इज ए एवरेज लाइफ ऑफ एनी पर्सन, यानी एक आम इंसान जनरल कंडीशन में कितने सालों तक जिंदा रह सकता है, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा हिंदी में बोलते हैं. नाउ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. अब यहाँ पर डेमोग्राफी का मतलब होता है जनसंख्या की काउंटिंग से या फिर लोगों की काउंटिंग से, उससे. फिर दूसरा है आपका ट्रांजिशन. ट्रांजिशन का मतलब होता है परिवर्तन होना, किसी भी जगह की चीज में परिवर्तन होने पर. यहाँ पर परिवर्तन या डिफरेंस किस में हो रहा है, चेंज किस में हो रहा है, डेमोग्राफी ट्रांजिशन. दैट मीन्स जनसंख्या में परिवर्तन होना, जनसंख्या का बदलाव होना. सो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, तो यहाँ पे हम थ्योरी की बात करते हैं. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज ए वन टाइप ऑफ थ्योरी विच डिस्क्राइब एंड प्रेडिक्ट द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया. यानी ये एक ऐसी थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग हम डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी भी एरिया, किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन के बारे में, कि इतनी पॉपुलेशन आज है तो 10 साल बाद में इतनी पॉपुलेशन होगी, 20 साल बाद में इतनी होगी, 30 साल बाद में इतनी होगी. दैट इज द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी. नाउ डेमोग्राफिक साइकिल. डेमोग्राफिक साइकिल अगर हम बात करते हैं, इन दैट थ्योरी इट टेल अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन चेंज फ्रॉम हाई बर्थ एंड हाई डेथ टू लो बर्थ एंड लो डेथ. इसका मतलब ये है कि किसी एरिया में हाई बर्थ रेट है और हाई डेथ रेट है, और वहाँ पर जब डेवलपमेंट होता है, साइंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, हेल्थ एजुकेशन डेवलपमेंट होता है, तो वहाँ पर क्या हो जाती है, लो डेथ रेट एंड लो बर्थ रेट. सो दैट चेंज रिकॉग्नाइज डेमोग्राफिक साइकिल. एंड ड्यू टू द सोसाइटी प्रोग्रेस फ्रॉम रूरल एग्रीगेशन एंड लिटरेसी, अर्बन इंडस्ट्रियल एंड लिटरेसी सोसाइटी. तो यहाँ पर हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट है वो चेंज हो गई है लो बर्थ रेट में और लो डेथ रेट के अंदर. किस वजह से, ड्यू टू अर्बनाइजेशन, ड्यू टू लिटरेसी सोसाइटी, ड्यू टू अवेयरनेस, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. दैट इज द रीजन. एंड दीज चेंजेस ऑक्यूर इन स्टेजेस. तो यहाँ जनसंख्या जो बदलने का जो तरीका है वो डिफरेंट स्टेजेस में है, एंड दैट स्टेज कलेक्टिवली known as demographic cycle. Now 3 stages of demographic cycle, यानी जनसंख्या में परिवर्तन होने के 3 स्टेजेस इसमें कहे गए हैं. Now first stage, in the first stage there is a high fertility and high mortality. इसका मतलब कि ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं और ज़्यादा लोग मरते हैं, यानी ज़्यादा जन्म दर, ज़्यादा मृत्यु दर. इसके पीछे रीजन ये है, देयर इज नो फूड सिक्योरिटी, नो फूड सप्लाई, देयर इज एपेडमिक, महामारी ज़्यादा है, डेथ रेट ज़्यादा है, तो लोगों को वहाँ पर बर्थ रेट पे फोकस करना, इसलिए वहाँ पर बर्थ भी ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि उनको पता है कि 10 फैमिली मेम्बर हैं तो उसमें से 7-8 बच्चे तो वैसे डेथ हो जाएगी. तो यहाँ पर हाई फर्टिलिटी रेट और मोर्टिलिटी रेट, यानी मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही ज़्यादा होती है फर्स्ट स्टेज में. इसी में बात करेंगे. द पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लो. तो यहाँ पर दोनों ही जो पॉपुलेशन ग्रोथ है स्लो होती है, क्योंकि बर्थ रेट भी ज़्यादा है और डेथ रेट भी ज़्यादा है. सो दैट्स वाई दैट इज स्लो ग्रोथ रेट, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम है और लार्ज फैमिलीज की प्रॉब्लम है. नाउ इस पॉइंट में अगर बात करते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज लो, यानी जो लोगों की एज होती है, यानी
50 साल की उम्र में ही लोगों की डेथ हो जाती है, 40 साल की उम्र में। यानी नॉर्मल कंडीशन में एक इंसान कितनी साल जिंदा रह सकता है? दैट रिकॉग्नाइज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा। पीपल आर मोस्टली लिटरेट एंड हैव लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या है, इलिटरेट, अनपढ़ होते हैं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, साइंस नहीं है। एंड 200 ईयर अगो ऑल ऑफ द कंट्रीज ऑल ओवर इन द स्टेज, यानी 200 साल पहले की बात करें तो जितने भी देश थे, कंट्री थे, वो सभी इस स्टेज में थे, फर्स्ट स्टेज में। नाउ सेकेंड स्टेज, नाउ सेकेंड स्टेज, डबलिंग टाइम नहीं है, सॉरी। नाउ सेकेंड स्टेज, फर्टिलिटी रिमेन हाई इन द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड स्टेज। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेज क्या हम देखते हैं कि जो फर्टिलिटी है, दैट मीन बच्चों की जो जन्म दर है, पैदा होने का टाइम पीरियड है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। बट वो उतनी तेजी से कम नहीं हो जितना बाद में आगे कम होगा। बट यहाँ पॉपुलेशन स्टार्टिंग में तो हाई होती है, सेकेंड बर्थ रेट हाई होती है स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे वो क्या होती है, कम होती है, डिक्लाइन होती है। एंड सेकेंड थिंग, रिड्यूस मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट दैट मीन्स मृत्यु दर है वो भी कम हो रही है, यानी मरने वाले लोगों की संख्या है वो कम हो रही है। एंड दैट इंप्रूवमेंट इन द सैनिटेशन एंड हेल्थ कंडीशन लेड टू डिक्लाइन मोर्टेलिटी रेट। दैट मीन्स इन द सेकेंड स्टेज दैट इज ए डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, इससे डेथ रेट है वो, मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो गई है। और इससे क्या देखने को मिलता है, हाई पॉपुलेशन। नाउ थर्ड स्टेज, इन द थर्ड स्टेज बोथ फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी डिक्लाइन। तो यहाँ पर जन्म दर है, मृत्यु दर है, मोर्टेलिटी रेट है और फर्टिलिटी रेट दोनों ही वो कम हो गए हैं ड्यू टू अवेयरनेस, ड्यू टू एजुकेशन, ड्यू टू अर्बनाइजेशन, ड्यू टू हाई टेक्निकल नॉलेज। सो दैट ऑल द थिंग ड्यू टू फैमिली प्लानिंग। तो थर्ड स्टेज में क्या हो गई है, जो बर्थ रेट है वो भी कम हुई है और डेथ रेट भी कम हुई है। दैट मीन्स फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी। नाउ पॉपुलेशन कंट्रोल एंड मेजर्स। अब यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ तो रही है, बट व्हाट आर द मेजर्स, हम कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिनसे कि जनसंख्या को हम कम कर सकते हैं। सो देयर आर 4 पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग, यानी परिवार नियोजन की जो सर्विस वगैरह है, अवेयरनेस है, वो चीज़ें लोगों तक पहुंचाई जाएं। अच्छी जो टैबलेट वगैरह, मेडिसिन वगैरह पहुंचाई जाए ताकि फैमिली की प्लानिंग की जा सके, कंट्रोल की जा सके, यानी हम दो हमारे दो, दैट टाइप ऑफ फैमिली प्लानिंग। सेकेंड थिंग, इम्प्रूविंग वुमेन हेल्थ। यहाँ पर वुमेन हेल्थ को इम्प्रूव करना जरूरी है टू कंट्रोल पॉपुलेशन। तो यहाँ पर वुमेन्स की हेल्थ अच्छी होगी, अवेयरनेस होगी, तो यहाँ पर बर्थ रेट को कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। नाउ थर्ड पॉइंट, फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ कंट्रासेप्टिव, दैट मीन्स गर्भ निरोधक दवाइयाँ हैं या गोलियाँ हैं या अलग अलग और भी बहुत सारे साधन हैं जो कि आपकी प्रेगनेंसी को कंट्रोल करते हैं, रोकते हैं, उनको फ्री अवेलेबल करवाए जाए ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल हो। द लास्ट वन इज टेस्ट डिसेंसिटी फॉर लार्ज फैमिलीज। तो यहाँ पर टैक्स के बारे में कहा गया है लार्ज फैमिलीज के लिए कि यहाँ पर जो ज़्यादा फैमिलीज हैं उन पे टैक्स को ज़्यादा लगाया जाए ताकि वो फैमिली कंट्रोल करें। अब तो जॉब के अंदर भी कर दिया है कि आपको गवर्नमेंट जॉब तभी मिलेगी जब आपके 2 बच्चे होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ओनली 2 चिल्ड्रंस, उससे ज़्यादा होंगे तो आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। नाउ द थ्योरी, दैट इज द थॉमस माल्थस थ्योरी, ये 3 मार्क्स में अलग से आ सकता है, थॉमस माल्थस थ्योरी, एंड दैट थ्योरी गिवन इन 1798। तो माल्थस थ्योरी है वो 1798 में दी गई थी। अब इस थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या है, द नंबर ऑफ पीपल वुड इंक्रीज फास्टर देन फूड सप्लाई। दैट मीन जितना हमारे पास खाना अवेलेबल है उससे कहीं ज़्यादा है, उसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है ड्यू टू इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पीपल, इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन। और उससे क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी और पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होगा, फैमाइन होगा, अकाल होगा,
और दूसरा क्या होगा, डिजीज होगी, बीमारियां, महामारी होगी। एंड थर्ड थिंग, लड़ाई होगी, वर्ल्ड वार होगा, अटैक होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, पॉपुलेशन सडनली क्या होगी, कम हो जाएगी। एंड दैट इज द थॉमस माल्थस थ्योरी। फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिसोर्स द वर्ल्ड विल हैव टू कंट्रोल द रैपिड पॉपुलेशन इंक्रीज। तो यहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट के लिए। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।